महाराणा प्रताप के बाद हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। राव Chandrasen was born on 16 July 1541 CE. He was the son of Maldev Rathod and Jala Rani Swarup Devi. Rani Swarup Devi had requested Maldev to make Chandrasen the prince of Marwar. When Maldev died, Chandrasen became the ruler of Marwar on 31st December 1562. Though he was the youngest of all his brothers, for this reason both the brothers of Chandrasen became annoyed. The elder brother Ram went in Mughal Emperor Akbar's court and requested him for royal assistance. And Akbar was also waiting for this to happen. Shortly after this, Akbar sent his army under the leadership of Hussein Kali Khan towards Jodhpur, who occupied the Jodhpur fort in May 1564 CE. Marwar's ruler Chandrasen fled away from Jodhpur and took shelter in Bhadrajun in 1570 CE. Chandrasen attended Akbar's Nagaur court, but seeing the behavior of Akbar and the presence of his competitor Uday Singh, he left the Nagaur court and returned back. राव चंद्रसेन की जो उनका जन्म जो है वो 16 जुलाई 1541 सी में हुआ था। यह उनके पिता का नाम जो था मालदेव और माता का नाम था जाला रानी स्वरूपदेव जो था उनका नाम था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कह के चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु के बाद में 31 दिसंबर 1562 सीई में चंद्रसेन अपने भाइयों से छोटा होते हुए भी जो है मारवाड़ का रूलर शासक बन गया था। इसी कारण राव चंद्रसेन के जो दोनों भाई थे उससे नाराज थे और बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर जो है शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खान के नेतृत्व में अपनी सेना को जो है जोधपुर भेजा जिसने मई 1564 सीई में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भाद्राजून में जाकर शरण ली। 1570 सीई में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर ने के व्यवहार और उसके जो कंपेटिटर और प्रतिस्पर्धी जो थे उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वो वहां से भी वापस चला गया। When Akbar come to know about all this, he appointed Raj Singh of Bikaner as Jodhpur chief and to crush Rao Chandrasen. Akbar sent his army towards Bhadrajun. From Bhadrajun, Chandrasen along with his nephew Kala, son of Chandrasen's brother Ram, reached Sojad. Following him, the Mughal army reached here also. Rao Chandrasen proceeded towards Siwan, Barmer, and from Siwan, Chandrasen reached at a place named Sachia in Saran Hills, Pali. There he died on 11th January 1581 CE. His samadhi is built at this place. Rao Chandrasen is also known as the Forgotten Hero, the Forgotten King, etc.
इसका पता जो जब वो नागौर कोर्ट से चला गया था, तो इसका पता जब अकबर को पता चला तो उसने बीकानेर के के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया, और राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना जो है बदराजून भेजी। बदराजून में चंद्रसेन ने अपने भतीजे कल्ला, जो कि अपने भाई उसके भाई का बेटा था, राम का बेटा था, के साथ में सोजत पहुंचा। वहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहाँ से सिवान बाड़मेर पहुंचा। सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों जो कि पाली में है सचिया नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 सी को उसका देहांत हो गया। वहीं पर जो है चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को जो है वो फॉरगॉटन हीरो या फॉरगॉटन किंग के नाम से जो है जाना जाता है। फिर है राय सिंह ऑफ बीकानेर। Rai Singh was the eldest son of Kalyanmal Rathod. He was born on 20th June 1541 at Nagor Court held in 1570 CE. He joined the royal army of Mughal Emperor Akbar and shortly became Akbar's loyal. राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का जो बड़ा पुत्र था। उसका जन्म जो है 20 जुलाई 1541 सी में हुआ था, और 1570 में लगे जो नागौर कोर्ट जो लगी थी उसमें अकबर का शाही सेना में शामिल हो गया था, और शीघ्र ही जो है वो अकबर का विश्वास पात्र बन गया था। Firstly, Akbar appointed Rai Singh as Jodhpur's chief in 1572. After the death of his father Kalyanmal on 25th December 1574, Rai Singh became the ruler of Bikaner. When Rai Singh was looking after Jodhpur's administration, at that time Ibrahim Mirza revolted in Nagaur. Rai Singh eliminated him in a village called कथौली। अकबर ने राय सिंह को जो है सबसे पहले 1572 में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 सीई में मृत्यु हो गई थी, और होने के बाद में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठौली नामक गांव में उसका दमन किया। A conflict took place between Sirohi Devda Sultan and Bija Devda. At that time, Rai Singh attacked Sirohi and forced Bija out of the state. He placed half of the Sirohi region under the Mughal Empire and gave it to the Maharana Pratap's annoying step-brother Jagmal, who had come from Mewar. Sultan attacked the Mughals. A battle took place between both the armies at a place called Dattani. Jagmal died in the Battle of Dattani, and Sultan reoccupied Sirohi. Being happy and with Rai Singh, Akbar granted him the Junagadh region in 1593 CE. He granted him the Jagir of Shamshabad and Noorpur in 1604 CE and entitled him as Rai. Between 1589
294 CE. Rai Singh built Fort Junagadh, Bikaner under the guidelines of Prime Minister Karamchand and inserted a Prashasti named Rai Singh Prashasti. Over this, Rai Singh was also a literature, and he wrote a commentary based on the language of Rai Singh Mahotsav, Vidyak Vanshavali, Jyotish Ratnamala, and astrological books. In a treatise named Karamchandra Vanshokrinag, he has been addressed as Rajendra. सिरोही में जो देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य जो है अनबन हो गई, तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर दिया। मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और दोनों सेनाओं के मध्य 1583 में सीई में दत्तानी नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ और दत्तानी के युद्ध में ही जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह को से प्रसन्न होकर 1593 में उसे जूनागढ़ प्रदेश दे दिया। उसने उसे 1604 सीई में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 सीई के मध्य जो है प्रधानमंत्री करमचंद की सहायता से की देखरेख में जूनागढ़ का जो कि बीकानेर में है का निर्माण करवाया और वहाँ एक प्रशस्ति लगवाई जिसे रायसिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। रायसिंह साहित्यकार भी था। उसने रायसिंह महोत्सव, वैद्यक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधि नामक टीका लिखी। कर्मचंद्र कीर्तनक काव्यम ग्रंथ में राय सिंह को जो है राजेंद्र नाम से पुकारा गया है। ड्यूरिंग द रिजाइन of Rai Singh, Bikaner experienced a severe famine. Rai Singh opened Sadavrats at several places and arranged fodder and for animals, and beginning of Bikaner style of art is regarded to have started during the reign of Rai Singh. Rai Singh died at a place called Burhanpur in South India on 21st January 1612. राय सिंह के शासनकाल में जो है बीकानेर में एक बार अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह पर सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करी। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत जो है राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु साउथ इंडिया में एक स्थान है बुरहानपुर, वहाँ पर 21 जनवरी 1612 सीई को हुई थी। At some place of South India, Rai Singh saw the embraced a bush named Fog in a desert and said, राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फॉग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया और कहा कि तू से देसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, मारे अकबर तेड़िया, क्यों तू आयो फोग। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर अ नेटिव प्लांट, यानी कि तू जो है देसी पौधा है। वाइल आई एम अ फॉरेनर, और जबकि मैं एक परदेसी व्यक्ति हूँ। अकबर हैज सेंट मी
फोर्सफुली ओवर हियर। और अकबर ने जो मुझे है जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। बट फोग वाई हैव यू कम हियर, पर है फोग तू जो है यहाँ पर क्यों आया है। थैंक यू।